आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। Honorable Chief Minister Sir, Honorable Minister of Education Atishi Ma'am, Honorable Mayor MCD Madam Shelly Oberoi, Director Education Mr. Vikas Tripathi, all esteemed gathering of educationists here from MCD, I welcome you all for this interaction session with our Honorable CM. Post your experience with one of the premier management institute of India, IIM Ahmedabad. Sir, I would like to bring to your notice that the principal plays the pivotal role in any policy implementation and making a change in the education system. So it was a innovative step to train these principals in one of the premier management institute of India, IIM Ahmedabad. So far, 22 batches have been trained over there. And this was the first batch from MCD which was sent to gain some learning experience over there and in turn implement it in their schools. So that your vision of quality education in government schools of Delhi can be visualized and implemented by them. So the program was for 5 days workshop, which was taken up by the educationals in the institute, and it tried to enhance a full range of management capabilities of the principals who attended this program. The program is aimed to create an optimal solution for the school's advancement and evolution. And the senior faculties of IIM touched on some of the key areas and aspects such as leadership for innovative practices in the schools, role of a school head in managing the school, school discipline and emotional well-being, mindfulness and inner stability, managing self-limiting beliefs, which is sometimes a major constraint in bringing out a change and accepting a change. Artificial intelligence and education, gamification, how to use gamification in the education area to engage students and help teachers, and developing in-house expertise of the teachers so that they can become a support system for the principals. Apart from that, managing public perception was also dealt with there so that the community engagement can be enhanced and school can become an ecosystem for the community, for the students, for the teachers and society at large. So here there are 47 principals who participated in this program, along with one deputy director from MCD and 2 faculties from SCRT. And now here I request Atishi ma'am to facilitate the interaction and the experiences which they gained over there. Thank you ma'am. Thank you रीता जी, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। और ये तो मुझे पता है कि आप सब, अभी मैं सर को आते हुए भी बता रही थी कि जब मैं वहाँ पे गई भी थी और वापस आने के बाद भी आप सब लोग बहुत एक्साइटेड थे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर। एंड सर मैं भी वहाँ पे गई थी एक दिन के लिए इस प्रोग्राम के दौरान, तब भी इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, पर दैट वाज ओनली डे 2 ऑफ द प्रोग्राम। सो अब हम चाहेंगे कि आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मैंने CM सर को बताया था कि बैच जा रहा है, तो तभी उन्होंने कह दिया था कि जब वापस आएंगे तो मैं उनसे इंटरेक्शन करके सुनना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस सबका कैसा रहा। तो आज आप लोगों की बात सुनने के लिए आया। माइक है मुनीश? अच्छा सर आपके पास, आप माइक सबके पास लेके जा सकते हैं। तो आप में से जो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें कि क्या रहा, कैसा रहा, कैसा लगा, और अब क्या करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जो सीखा उसके साथ आगे क्या लगता है कि क्या करेंगे। और आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा प्लीज जब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही है? आई कैन नॉट लिसन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, मेयर मैम, our director sir, Rita ma'am, and all the people on this stage.
very warm good morning to my dear friends. I would like to share my experience there in IIMA. Definitely it was an outstanding experience. We learned a lot. IIMA training remains very useful. All the sessions were very effective, very impressive. So the main insight I get there is that there is a long way to go with the vision of our Honorable Chief Minister, Education Minister, and our department as well. And I am grateful for this opportunity to learn and to be the part of this changing history. We used to listen about this, that people used to go to meet with ministers, and now here we got this opportunity to meet all of you in person. Thank you so much for giving us this opportunity. I am grateful to Director Sir also for keeping the faith in us. My key learning was there, leadership for the innovative practice in school and mindfulness and our inner stability. So although all the chapters, all the topics covered there was very impressive and very effective, but as per my capability, I choose this. So these two topics I found very much learning from my side. So I can say I learned few things just on the spots. So according to that, I have chosen these topics. And most impressive sessions जिन पर मुझे अभी काम करना है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन एंड लीडरशिप एज मैनेजिंग परफॉर्मेंस. व्हाट आई कैन डू डिफरेंटली, एक छोटा सा हमें की नोट दिया गया था कि हम अपना फीडबैक कैसे समराइज कर सकें. सो आई हैव टेकन दैट नोट. So I can work on mindfulness and our inner stability for the teachers and the students for the better learning environment and quality education. And my suggestions for that program, some lectures were very lengthy and one-sided. So I suggest few activities can be added to make it more interesting. And थोड़ा सा मैम हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि उसमें से अब आप अपने स्कूल में क्या लेके जा सकते हैं. मैंने सबसे पहले मैम जाते ही पहले ही दिन शुरू कर दिया. मैंने रोल ऑफ प्रिंसिपल को एनहेंस करके मैंने रोल ऑफ टीचर तक और रोल ऑफ स्टूडेंट तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है. और उसके लिए मैंने उनको क्वेश्चनर दिया और उनसे मैंने रोल मॉडल के जो उनके की पॉइंट्स थे वो लिखवाए कि ये बातें तो आप समझते हैं कि आपका रोल है, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. इससे आगे क्या हो सकता है, हम सब मिलकर और क्या कर सकते हैं एजुकेशन और स्कूल को बेटर बनाने के लिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे. बहुत बढ़िया, थैंक यू. थैंक यू सो मच. मेरी एक दो रिक्वेस्ट हैं. अब जब एक तो गुड मॉर्निंग सबको आप मत बोलिए, स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें बहुत समय चला जाएगा. हम मान लिया हमने कि आपने हम सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया. और आराम से हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो हिंदी में, मतलब हम आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं. सेशन प्लान तो हमारे पास भी है कि आप लोगों ने वहां पे क्या रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आप उसे आगे कैसे लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा. और हिंदी में बात करनी है तो आराम से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं. हाँ जी, वहां पे मैम ने. सभी को नमस्कार. और मैं दो लफ्जों में अपनी बात कहना चाहती हूँ. आप अपना नाम भी और स्कूल भी बता दीजिए मैडम. मैं कल्पना राज, JNK लक्ष्मी नगर, सादरा साउथ से. और मैं दो लफ्जों में कहना चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस सब में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है. आपने मुझे चूज किया IIM जाने के लिए, जिसका नाम हमने शायद सुना ही था. और जब हमारे घर में पता चला, हमारे रिश्तेदारों में पता चला, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में पता चला, तो एक बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार हो गया कि हम पता नहीं वहाँ क्या करने जा रहे हैं. और सर मैं कहना चाहूँगी, आप सबको विदेश भी भेजेंगे आप. तब तो आप रिश्तेदारों में और भी फेमस हो जाएंगे. सर आपने हमें सेलिब्रिटी बना दिया है कि हमें बताना पड़ रहा है कि हम क्या करके आए हैं वहाँ पर, क्या सीख कर आए हैं. तो पहले शॉर्ट में मैं बता देती हूँ मैंने वहाँ क्या सीखा. मैंने दो चीज़ मेनली सीखी वहाँ पर कि मुझे अब अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को 100% इन्वॉल्व करना है. शिक्षा में जो नए चेंज हो रहे हैं उससे उन्हें अवगत कराना है और उसमें उनको भी शामिल करना है,
ताकि उन्हें पता चले कि वो भी हमारे साथ साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। और दूसरा सर मैंने वहाँ ये सीखा कि अगर हम आदेश लेंगे तो शायद सामने वाला ना समझे, स्वीकृति के भाव के साथ टीचर की क्षमता को पहचानते हुए मैं उसमें अपना काम विभाजित करूंगी, क्योंकि अभी तक सारे काम लेके मैं ही चल रही थी कि मैं स्कूल को चला रही हूँ और टीचर से पढ़ रहे हैं। तो वहाँ निहारिका मैडम ने हमें ये बताया कि इस काम को बांटना है और तभी हम स्कूल में अपनी लीडरशिप दे पाएंगे। और उसके बाद सर एक चीज़ है कि फीडबैक में तो मैं सर यही कहूँगी कि जैसे आजकल कंप्यूटर या मोबाइल अपडेट होते रहते हैं सर, तो हम प्रिंसिपल्स को भी अपडेट करने के लिए ऐसी वर्कशॉप अब आते रहेंगे। सर माय नेम इज कृपाल सिंह यादव और मैं साउथ जोन के सतबड़ी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। हम लोग आपके प्रयास से गए और वहाँ पर हमने एक तो दृढ़ संकल्प सीखा, डिसिप्लिन सीखा और बच्चों को और टीचर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, एक लीडरशिप प्रोग्राम हमने ये सीखा। और जो हमने सीखा है वो चीज़ें मैं अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करूँगा और बच्चों को आगे कैसे ले जाया जाए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के आसपास के एरिया में तो साल भर में ये हो जाए कि हाँ एमसीडी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और पेरेंट्स को ये लगे कि अब एमसीडी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से भी आगे जाएंगे। थैंक यू। वेरी गुड। इसके बाद सर सब औचक निरीक्षण के रेडी हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोज है। मैं केपी जोन में अशोक विहार फेज 3 के स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। हम सब एक लकी बैच था जो फर्स्ट बैच हम लोग IIM अहमदाबाद गए, जिनका हमने नाम सुना था। जैसे वो मैडम कह रही थी, सभी बहुत फैमिली में भी प्राउड फील कर रहे थे कि हम वहाँ गए हैं। इवन मेरे अपने स्कूल में, पुराने स्कूल में वो लोग भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि MCD में एक नया स्टेप आया है। और वहाँ जाके जितने भी फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी ने हमें वहाँ पे जितने सेशंस दिए बहुत ही यूज़फुल थे। और उसमें उन्होंने जो केस स्टडीज़ के साथ हमें पढ़ाया, वो सब हमारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शेयर करा हमने एक दूसरे से, तो हमें कई चीज़ें सीखने को मिली। और वहाँ जो हमें लगा, जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि अब हमें अपनी स्कूल बाउंड्री के अंदर ही नहीं रहना है। पेरेंट्स हमारे तक शायद चल के ना आए, हमें उनके पास जाना है, स्कूल से बाहर हमें निकलना है। जैसे एक केस स्टडी में उन्होंने बताया था किसी गाँव का कि हमें स्कूल से बाहर निकल के उनको अपने स्कूल तक लेकर आना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौहान मांगर उर्दू फर्स्ट। वैसे तो सेमिनार्स हमारे सबके होते रहे हैं पिछले 25-30 सालों से और हमें लगता अभी तक कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो इस टाइम हमें आया है अहमदाबाद भेज के सिखाया गया है मैम, वो कभी नहीं हुआ है ऐसा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ जो भी हमने सीखा है, पढ़ाने में ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है, हमने सीखा है, लेकिन उसको ज़्यादा एडवांस तरीके से और अच्छे तरीके से और उसको लागू करने के तरीके से, ये नया है मेरे लिए तो। और मैं चाहती हूँ मैं अपने 110% एफर्ट्स लगा के, अब तक तो 100 लगाती थी, अब 110% एफर्ट्स लगा के मैं वो चाहती हूँ जो नया चेंज हमारी गवर्नमेंट में आ रहे हैं, हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे और जगहों पे आ रहे हैं, वो भी MCD में आ जाए। और उसकी छवि बदलने के लिए जैसे कि हमें सिखाया है, हम लोग भी ऐसा करेंगे काम के बिल्कुल ही MCD की छवि बदल जाए जो है आज तक, वो सब आपको मालूम है। थैंक यू। मैडम की सिस्टर या फैमिली से कोई हमारी DOE के एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये शेयर कर रही थी पिछली बार कि मैं भी सोचती थी कि हमारे भी स्कूल ऐसे होंगे। मेरी सिस्टर जब बोलती थी, मैं उससे बोलती थी हमारे यहाँ ऐसे, तो बोलती थी हमारे तो यूँ हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो मैं सोचती थी, उससे बोलती थी काश कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो। तो मुझे लगता है अब ऐसा हो गया। जाफराबादी स्कूल भी है जो आप लोगों ने पिछले इतने सालों में इतना अच्छा किया है, तो मेरे बच्चे वहीं जाते हैं हमारे स्कूल में, तो उनके बच्चों को देख के उनके स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे स्कूल भी ऐसे ही होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल। शुक्रिया। सभी को नमस्कार। ये मेरी लाइफ का सबसे अहम, जिंदगी का सबसे, इसको कहते हैं ना कि अहम, और एक अहम पीरियड 5 दिन का जो था वो बहुत अहम रहा है। 30 साल की मतलब हमारी सर्विस में मैंने ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा, मैंने सेमिनार बहुत किए, सीखा और कहते ही रहते हैं बच्चों के साथ हम, लेकिन जो वहाँ सीखा है वो शायद मैंने कहीं नहीं सीखा था।
सबसे पहली चीज मैंने वहाँ सीखी है माइंडफुलनेस। एक समय में एक काम करना। अगर हम एक टाइम में एक काम करेंगे तो हमारे काम में परफेक्शन आएगा। ये बहुत अच्छी चीज वहाँ बताई गई। दूसरा, मैंने आते ही सबसे पहले तो अपने स्टाफ में काम किया, सबको जीपीटी लोड करवा दिया, सबके मोबाइल। और वैसे तो हमारे में चलिए लर्निंग बाय डूइंग, तो मैंने सोचा कि हम जब लर्निंग बाय डूइंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना गेमिफिकेशन सबसे पहले ले लें। कल मैंने गेमिफिकेशन की एक क्लास ली है, तो मैंने वहाँ बहुत सीखा। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है मैम, और स्कूल कहाँ पे है आपका? ओके, आपको देख के मैं वो ना बोले ऐसा कहाँ हो सकता है? रामबाबू शर्मा, मंगोलपुरी के सेकंड। सर एक सेकंड सर, हमने कोशिश ये करी थी कि पूरी दिल्ली से तो जो सब 12 जोन्स हैं, हमने सब जोन्स का रिप्रेजेंटेशन इस पहले बैच में किया था। हमारे रोहिणी जोन से 2 ही प्रिंसिपल थे, मैं और निर्मला मैम। लेकिन जब वाकई में इतना हमें एक्सपोज मिला और अपने आप सबसे बड़ी इतना आत्मविश्वास इतना हो गया है कि अब हम कोई भी इनिशिएटिव लेने में हम डरेंगे नहीं, क्योंकि पीछे का सपोर्ट हमें ये लग रहा है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, जो हम कुछ भी इनिशिएटिव लेंगे तो हमें उस चीज़ को सपोर्ट मिलेगा। ये हमें, और देखिए किसी भी संस्था को चलाने के लिए जब तक आपके HOS में आत्मबल नहीं है, उसको विश्वास नहीं है जो मैं करूँगा उसके पीछे मुझे सपोर्ट चाहिए सभी तरह का, तो वो हमें अब ऐसा लगने लगा है कि हमें सपोर्ट है। हमारे त्रिपाठी सर हैं, इतने अच्छी चीज़ें हमारे उस पर भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चों, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम HOS उसमें भागीदारी निभाएंगे, पहले हम डरते थे, अब हम डर ना लेके और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या छोड़ना है, जो हमारे देवेश्वर चक्रवर्ती ने बताया था कि आपके पास जहाज में 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपकी लाइफ बचानी है, क्या छोड़ना है। तो हमें छोड़ते 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 केवल एक याद रखना है कि हमें बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है। ये हमारा एम रहेगा, ये वादा है आपसे हमारा। थैंक यू। मंचा सिंह, मान्यगढ़। और सर टाइम लिमिट के अंदर शॉर्ट में। और सभागार में सभी उपस्थित साथियों को मेरा सादर नमन। मैं जमींदार सिंह, स्वरूप नगर सेकंड से एज प्रधानाचार्य। तो वैसे तो 5 दिन का था ये, लेकिन मेरे अंदाजे में लगभग 21 दिन का हो गया। 7 दिन का वो मेन और 7 दिन पहले तैयारी में, और अब 7 दिन इधर एक्साइटमेंट के। तो लेकिन खास बात इसमें यही रही, मैंने एक 3 शब्द वहाँ देखे, ब्रिक बाय ब्रिक। वो बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि वाकई हमारा पूरा सिस्टम उसी सिस्टम पर जुड़ा है, चाहे वो हमारी आधार की नींव हो, चाहे कंगूरे की ईंट। तो अभी हमारे पास जैसे हमारी सरकार, हमारे अधिकारीगण इस सब के लिए समर्पित होकर के हमें एक मौका दिए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और ये सफलता हम तभी मानेंगे जब हम इसको प्रधानाचार्य के स्तर पर और उन बच्चों तक इस सब चीज़ को पहुंचाएंगे। तो मैं सफलता तो तब मानूंगा इसकी अपने लेवल पर, और मैं इसके लिए जी जान से जुटा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा सिंह, मार्गदर्शकों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। बहुत यात्राएं की। अपना नाम और स्कूल भी बता दीजिए। जी, राजेश्वर प्रसाद सिंह, गुराड़ी कन्या विद्यालय। वहाँ हमने जो काम हमने अब तक किया था ना, उसे एक शब्द रूप देना सीखा, और जो हम कुछ पढ़ते थे उसको कहीं ना कहीं कार्य रूप देना सीखा। एक अजब तरीके से एक विशेष परिवेश में जो हमें सिखाया गया, लगा कि बिल्कुल हम उससे जी रहे हैं। और अगर ऐसा हमने उसका 50% भी कर लिया ना सर, तो चमत्कार सा हो जाएगा। जो प्लानिंग हुई है, जो शिक्षा मंत्रालय का यह कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये जो पहला बैच है उस कार्यक्रम को कार्यरूप देने का बिल्कुल केंद्र बिंदु बनेगा। मैंने वहाँ एक लिख कर भी दिया कि मैंने सबसे कमजोर बच्चे और सबसे अच्छे बच्चे पर कार्य शुरू किया था। तो सबसे कमजोर बच्चे इन द सेंस
सर का भी मार्गदर्शन था कि इस बार 5वीं के बच्चे जाएंगे निगम के स्कूलों से, तो उसमें 180 बच्चों में 12 बच्चे मुझे मिले जिनको किताबें पढ़ने नहीं आती थी। मैंने उनको अपने ऑफिस में बैठा के पढ़ाना सिखाया और कुल 3 बच्चे रह गए जो थोड़ा कम पढ़ पाए, और इसका रिजल्ट हुआ कि वहाँ से बुराड़ी सर्वोदय विद्यालय कन्या विद्यालय से मेरे पास वो आई कि सर आपने जो बच्चे भेजे वो मेरे विद्यालय से भी अच्छे। फिर सबसे अच्छे बच्चों पर सर मैंने वहाँ 5 साल पहले प्रिंसिपल गया हूँ, कार्य किया। वहाँ 500 बच्चों में 2-3 बच्चों को मेधावी आता था। जब मैंने कोशिश की तो पहले क्रम में ही ये 11 हो गया, और अब इस बार 18 हो गया है जो सिविल लाइन में सेकेंड है। तो मैंने वहाँ जो सीखा वो सबसे कमजोर बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे पर कार्य करना और पेरेंट्स पर कार्य करना, क्योंकि विद्यालय परिवेश से बाहर भी हमें काम करना है और वो हमारे सफलता का सूत्र होगा कहीं ना कहीं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब उनकी कविता भी आएगी। कुछ पंक्तियां पढ़ के बात खत्म करूंगा। लगेगा कि हम वहाँ देख भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। आओ मिलकर बात करें हम IIM अहमदाबाद की, HOS प्रशिक्षण शिविर की, MCD के नए अंदाज की, प्रशिक्षण में था दम। वंदे मातरम। खूबसूरत यात्रा हमारी, जीवन में नई उड़ान मिली, 5 सितारा होटल में आपसी परिचय से पहचान मिली। गांधी जी के जन्मभूमि की, दर्शन बापू के धाम की, वंदे मातरम। प्रशिक्षण था अनुपम। प्रथम दिवस IIM परिवेश में टीम ने सब प्रवेश किया। प्रथम दिवस परिवेश में टीम ने जब प्रवेश किया, कथन सर ने परिचय सत्र में स्वागत अति विशेष किया। मिहिर की समस्याओं के सुखद सुंदर अंजाम की, वंदे मातरम। प्रशिक्षण में था। बाकी प्रोफेसर के बारे में नहीं कहूँगा। लास्ट वाला है, जो भी सीखा समझा हमने उसे कार्य रूप देंगे हम। जो भी सीखा समझा हमने उसे कार्य रूप देंगे हम। आभार शिक्षा मंत्रालय का, नूतन पथ पे चलेंगे हम। इतना सुंदर आगाज हुआ है, इतना सुंदर आगाज हुआ है, बारी है सुंदरतम अंजाम की, वंदे मातरम। प्रशिक्षण था अनुपम, वंदे मातरम। आप में से एक प्रिंसिपल ने वहाँ पे शेयर किया था कि किसी का बेटा IIM रांची में पढ़ता है। ये इनको माइक दीजिए। जब मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ और नाम आया कि लिस्ट आई कि आपका IIM आपको अहमदाबाद जाना है, तो मैं एकदम घबरा गई। कैसे करूँगी? मेरा बेटा IIM सिरमौर में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उस समय इंटर्नशिप के लिए दिल्ली आया हुआ था। उसने बोला मम्मी जिंदगी में आपको वो मिला है जो शायद मुझे भी नहीं मिला। मैं IIM का स्टूडेंट हूँ, बट मेरी भी एंट्री वहाँ नहीं हो सकती जब तक कि मेरा इंस्टीट्यूट नहीं लेके जाएगा। आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, ये आपके लिए बहुत अचीवमेंट है। और आप जो जा रहे हो ना, सिर्फ ये मत सोचना कि मैं वैसे ही जा रही हूँ। जो जिस काम के सिखाने के पर्पज से भेज रहे हैं वो सीख कर आना और उसे इम्प्लीमेंट देना। और सच में वहाँ जाके मैं किसी ने भी शायद हम अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन नहीं जा पाए। और हम गए, हमारे डिपार्टमेंट ने भेजा। वहाँ मुझे लगा जैसे मैं डाइट करके गई थी। एक्चुअली मैं डाइट करके टीचर बनी। मुझे वहाँ जाके लगा मैं डाइट की स्टूडेंट हूँ। जो डाइट सीख के जब मैं एज ए टीचर MCD में आई तो इतनी उमंग के साथ आई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से वही 30-32 साल पहले जो सीख कर आई थी ना, उसमें और नई नई चीज़ सीख आई और वही करूँगी। आज मैं अपने आपको एक स्टूडेंट समझ के खड़ी हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्टूडेंट हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ, और मुझे वही सब नया करना है। बहुत उमंग के साथ MCD में मैंने काम किया और अभी और दोस्त के साथ आई हूँ, नया नया सीख के आई हूँ और ऐसा ही सब करने की कोशिश करूँगी। सबसे ज़्यादा वहाँ टाइम मैनेजमेंट सीखी कि क्या टाइमिंग है। मैम ने सिखा दिया था शुरू में कि देखो साथ जा रहे हो, MCD का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। साथ जा रहे हो, अच्छे से जाना। और वही मैं
10 मिनट का ब्रेक होता था, 8 मिनट पे हम लोग वहाँ बैठ जाते थे। ये मैं पीछे ना रहता तो सबसे मैम का बहुत कुछ हमें मैम से भी सीखने को मिला, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने हमें भेजा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। देखा ना है शारदा साहू जी। मैं भारती सेलिब्रिटी तो हम बन चुके ये बात तो कंफर्म है कि हम सेलिब्रिटी बन चुके और हम प्रिंसिपल जो है अपने एफर्ट्स अपने स्कूल के अंदर बहुत अच्छे दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारी प्रिंसिपल सब ऐसी, लेकिन अब हम जब IIM में गए हैं हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला और जिन परेशानियों में हम हैं उन्हीं से हम कैसे उबर के और बच्चों को कैसे करा सकते हैं, अपने किस तरह से उनको बढ़ के और कम्युनिटी में जाके किस तरह से साथ लेके हम काम कर सकते हैं, ये हमको वहाँ पे अनीता जी दीदी हैं, ये पूरी टीम के साथ गई थी, तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और बल्कि मैम ने केवल एक दिन हमारे साथ बिताया और सबकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मैम को पता चल गई, किसका क्या चीज़ था। उसके लिए वाकई में आपका मैम, मैंने पहले भी कहा कि इतने व्यस्त समय से निकला। सर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग IIM में हमें क्लासरूम टीचिंग जो हमारे जो सीखा जो उन्होंने सिखाया, लेकिन वहाँ पे जो टीचिंग थी ना वो आउटसाइड द क्लासरूम थी। वहाँ पर ये नहीं है क्योंकि अब हम IIM में जाते तो IIM एक ही है, अदरवाइज IIM है, लेकिन IIM एक ही है, वो वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस हुआ। और ये शायद मेरे सारे साथ की इस बात से करेंगे जो मैंने जैसे कहा टाइम, हम लोग कहते हैं कि ऑन टाइम पॉलिसी OTP परफेक्ट एग्जाम्पल है सर, सब समय से है। और सबसे बड़ी बात, हम जैसे आज हम अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट से बहुत दूर है इस वक्त है, चाहे हम अपने बैग में कैरी कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी हम पूरे दिन भर अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहते थे। और हमें लगा शायद कोई इतनी, मुझे लगता नहीं कि किसी को इतनी ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं हमें फोन देखना है। और एक ये चीज़ लगी सर। दूसरी चीज़ एक मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम कुछ सीखते नहीं है ना तो हम बूढ़े हो जाते हैं। तो 55 की उम्र में आपने हमें कॉलेज के डेज याद दिलाए। और दूसरी चीज़ ये जरूर कहूँगी सर कि जो हम पढ़ते थे ना क्लास में, और उनका पढ़ाने का एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जो केस स्टडी थी वो कुछ ऐसा कोई काल्पनिक नहीं है, वो रियलिटी है और वो कहीं ना कहीं उससे हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे ये नाम अभी आपने सुना होगा, मिहिर, रिया, ये केस स्टडी के नाम है सर। मिहिर से सब वाकिफ़ हैं और वो मिहिर के वो जिस तरह से वो समझाते थे, और ये नहीं कि भाई उसको ये परेशानी थी तो उसने ऐसे किया तो वो ऐसे सक्सेस हो गया, नहीं। उन्होंने आपको ग्राउंड दिया, इन लोगों ने, हमने सब ने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करा कि नहीं इसको कैसे करके ठीक कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे करके इसको इम्प्लीमेंट किया। तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल था और काफ़ी कुछ केस स्टडी ऐसी थी जिससे कि हम सब रिलेट कर पाते थे। और हमारी भाषा ये हो गई थी कि जो हम जैसे कॉलेज में होता है कि हम कोई लेक्चर अच्छा लगता है उसमें से हम कुछ चीज़ें पिक कर लेते हैं, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कि जैसे एक मैम ने हमें, निहारिका मैम ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा बड़ा होता है, हम लोग बड़े होते हैं, पेरेंट होते हैं, कई बार हम बच्चे होते हैं। तो जैसे कोई चुप बैठते थे तो हम कहते थे क्यों भाई पेरेंट ज़्यादा हो गया है, अब बच्चे आ जाओ, बच्चे बन जाओ। तो जब ज़्यादा कोई शैतानी करते थे तो कहते थे क्यों भाई अब बच्चे ज़्यादा हो गए, आप थोड़ा थोड़ा पेरेंट होके आ जाओ, एडवाइजिंग। तो हमारी लैंग्वेज भी ये बन गई, जो कॉलेज में जो हम सीखते थे वही चीज़ है। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी सर, जो मेरी टीम है यहाँ और जो टीम मेरी यहाँ है नहीं, जो अब शायद आगे जाएगी और जो नहीं है, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हम 100% देते थे। लेकिन इसके बाद में, क्योंकि सर जब सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव होता है तो बहुत इजी होता है कोई चीज़ अचीव करना। और बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी काम करके भी हम काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद में
अब हम शायद चलने की बात रही दूर, अब हम दौड़ने लगेंगे, ये हमें थैंक यू सो मच आप सबके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अमृता जी। I would request Madam Shelley Oberoi for her observations and remarks, please. हेलो एवरीवन, और आप सबका वेलकम है। और जो एक स्माइल दिख रही है मुझे आपके फेस पे, इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से जब वो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो मुझे इसलिए मालूम है बिकॉज मैंने भी IIM से बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है। IIM कोझिकोड से किया है, केरला से, और सून हमारा बैच अब IIM कोझिकोड भी जाएगा इस महीने, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। तो नो डाउट जो IIM में पढ़ाया जाता है वो मुझे लगता है इंडिया के किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर दी, स्कूल डिसिप्लिन सिखा दिया, इमोशनल वेलबींग सिखा दिया, माइंडफुलनेस सिखा दिया, क्लासरूम टीचिंग सिखा दिया, ये सब सिखा दिया। पर अब जरूरत किसकी है? उन सबको इंप्लीमेंट करने की। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एज अ टीचर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती रही हूँ, तो मैं टीचर भी रही हूँ और स्टूडेंट भी रही हूँ। और जो सेटिस्फैक्शन एक टीचर को मिलता है जब उसके बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, वो खुशी जब हम लोगों को मिलती है, मुझे लगता है वो सेटिस्फैक्शन हम लोगों को किसी और प्रोफेशन में मिल ही नहीं सकता। आज मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ही मैंने इलेक्शन जीता और ऑनरेबल CM ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, IIM वाले प्रोफेसर्स ने कॉन्टैक्ट किया मुझे कि यू आर आवर स्टूडेंट एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड टुडे वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें MCD का नाम रोशन करना है। जो अभी तक MCD के बारे में बात की जाती थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट में स्कूल्स में हुआ, स्कूलों का इंफ्रा अच्छा बढ़ा, स्कूल की टीचर्स की इतनी इंप्रूवमेंट हुई, ट्रेनिंग दी गई, जैसे सर ने बोला, अब इंडिया ही नहीं है, आप लोगों को हम बाहर भी भेजेंगे फॉर श्योर। तो जो जो हमने चीजें वहां से सीखी हैं, हमें अब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें अपनी परफॉर्मेंस दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जैसी लानी है, प्राइवेट स्कूल जैसी लानी है। MCD को कभी भी हम पीछे अब नहीं देखना चाहेंगे। देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और वो मैम ने क्या कहा, सेलिब्रिटी बन गए हैं। सेलिब्रिटी बनने के बाद जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है। तो अब उस जिम्मेदारी को निभाने का टाइम अब हम सबका आ गया है। तो थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं आप ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें आगे भी। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। Now the person who has been, walking along with all of you, even accompanied you to IIM also, with her support, I request Atishi ma'am now to share her observations for further guidance. सबसे पहले तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए टू आवर एंटायर टीम। मुझे नहीं लगता कि शायद ही ये किसी स्टेट में ऐसा होता होगा कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर खुद एक 50 प्रिंसिपल्स के बैच को फीडबैक सुनने के लिए अपना टाइम निकालते होंगे। और अभी दिल्ली में एक मुश्किल परिस्थिति भी चल रही है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही इज़ गिवन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एंड बहुत अच्छा लगा आप सबकी बात सुनकर। बहुत अच्छा लगा था आप लोगों के साथ IIM में भी एक दिन बिताकर। और मुझे लगता है सबसे अच्छा लग रहा है आप लोगों का एंथुजियाज्म देख कि जो आप एक एंथुजियाज्म लेके आए हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि देखिए, अगर हम सरकारी सिस्टम को देखें, एक्चुअली हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। आप लोग अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके आप आज यहाँ पे एज प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके हमारे टीचर्स भी हैं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है कि फिर प्राइवेट स्कूल्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों है कि ऐसा सोचा जाता है कि सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन की कमी आ जाती है, और ये होता है कि अच्छा सरकारी सिस्टम है, ढर्रे में चल रहा है। और इसमें मैं ये मानती हूँ कि प्रिंसिपल्स और टीचर्स को ब्लेम करना सबसे आसान है, पर आई थिंक वी एज अ सिस्टम या वी एज अ गवर्नमेंट, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम सिस्टम पे ध्यान नहीं देंगे, तो शायद हम भी अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि आप लोग आगे टीचर्स पे, बच्चों पे ध्यान देंगे। तो मुझे खुशी इस बात की सबसे ज़्यादा आई थिंक इस पूरे एक्सपीरियंस की ये है कि
आप लोग IIM से जोश भर के वापस आए हैं और जोश भर के आए हैं कि आगे कुछ बेहतर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट फॉर मी पर्सनली शायद आपकी जो स्पेसिफिक आपने जो लर्निंग्स करी हैं उससे बहुत ज़्यादा ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आज के दिन में गवर्नमेंट स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजता है? अक्सर वो लोग भेजते हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, और अक्सर वो लोग भेजते हैं जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, एक मुश्किल परिस्थिति में होते हैं। हो सकता है कि वो खुद भी पढ़े लिखे ना हो सकता है बच्चों को जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को समय देते हैं वो ना दे पाते हों। सो एज प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि जिन बच्चों को हम अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको सिखाने वाला, उनको गाइड करने वाला, उनको आगे बढ़ने के अवसर देने वाला शायद और कोई भी नहीं है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी ये पूरी नहीं कर पाए तो इतने ये लाखों बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम पर, हमारे पूरे सिस्टम पर एज प्रिंसिपल्स आप लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिकॉज हो सकता है कि हम किसी ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल होते जहाँ पे हाई सोसाइटी के बच्चे आ रहे होते, उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे होते, घर में ट्यूशन टीचर्स होते, तो हम अपना बेस्ट नहीं भी दे पाते तो उन बच्चों के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पे असर नहीं पड़ता। लेकिन आज जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ख़ास करके प्राइमरी स्कूल में, अगर इस मौके पर उनको सही टीचिंग, सही गाइडेंस नहीं मिल पाई तो उन बच्चों के लिए लाइफ में आगे सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आप सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज प्रिंसिपल्स, क्योंकि जैसा आप स्कूल को लीड करेंगे वैसा ही आपके टीचर्स, वैसा ही आपका सारा नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे मिलकर बहुत बेहतर सब लोग काम करेंगे। जैसा आपने कहा 100% तो आप देते ही आए हैं, लेकिन अब थोड़ा जोश के साथ 110% सब लोग मिलके देंगे। देखिए, पर्सनली हम लोगों का हमेशा से एक सपना रहा है, हमारा ये सपना रहा है कि दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स से आगे निकलें। और मैं तो ये चाहूँगी कि एक दिन ऐसा है, देखिए जो दिल्ली में रहता है ना उसको पता है कि जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का समय आता है तो जब प्राइवेट स्कूल के एडमिशन्स खुलते हैं तो स्कूलों के आगे लाइनें लग जाती हैं, लोगों के पास सिफारिश आने लग जाती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगर हम अपने स्कूलों को इतना बेहतर बनाएं कि MCD के स्कूल्स इतने अच्छे हो जाएं कि ये प्राइवेट स्कूलों के सामने की लाइनें ख़त्म हो जाएं और सब लोग हमारे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए आएँ। ये हमारा सपना, और मुझे आप लोगों के जोश को देख के पूरा भरोसा है कि ये सपना हम जल्द ही इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। और ये जो सपना यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं उसमें मैम आपने एक कंसर्न रेज किया था कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको सिखाने वाला और उनको अवसर शायद नहीं मिल पाता है, बट आई थिंक हमारे CM महोदय ने उनको अवसर भी दिया है और उनको सिखाने के लिए हर संभव प्रयत्न भी किया है। सो नाउ आई इनवाइट अवर ऑनरेबल CM for his address so that we can be guided further and we can be supported by his vision. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आपके सबके चेहरे की स्माइल और खुशी देख के मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। जितनी एनर्जी आप सब लोग वहाँ से लेके आए हैं, सीखने वाला दौर तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, पर जितनी एनर्जी और ऊर्जा आप लोग लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऊर्जा जब आप लोगों के अपने अपने स्कूल के अंदर बच्चों में, टीचर्स में जाएगी तो वो आसपास के सारे स्कूलों में पता चलेगा। सो एक तो आप सब लोगों ने, जितने भी लोगों ने अभी बोला, आपने सब ने कहा कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। सो आपको आपके पड़ोसी स्कूल वाले प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब लोग देख रहे हैं और सब बड़े ध्यान से देखेंगे कि दोनों चीज़ें हैं, जेलसी भी है दूसरों में, है कि नहीं है, जलन भी है। तो वो मन में तो सोच रहे हैं बड़ी IIM से होके आई है, देखें अब क्या तीर मारती है।
है ना, तो तीर मार के दिखाना है वो, नहीं तो IIM का नाम बदनाम हो जाएगा। तो वो तीर मार के दिखाना है, तो दोनों चीज़ें करनी है। एक तो आप अब जो काम करोगे उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और चारों तरफ ये चर्चा होगी। आप हालांकि केवल 50 टीचर्स गए, प्रिंसिपल्स गए थे, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो कम से कम 500,000 स्कूलों में फैलेगी कि वो देखो वो टीचर होके आई थी, वो प्रिंसिपल्स होके आई थी, वहाँ पे स्कूल में ये बदलाव आने लग गए। सो यू हैव टू बिकम दैट एजेंट ऑफ चेंज नॉट ओनली इन योर ओन स्कूल, पर आसपास के सारे अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो आपको चेंज बनना है। उससे पूरे MCD सिस्टम अभी बहुत हताश है, निराशा है चारों तरफ MCD के सिस्टम के अंदर, उसे आशा में कन्वर्ट करना है। सो आज एक बड़ा चेंज ये है कि आप सब लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना जोश है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। क्या सीख के आए वो तो है ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो आपके चेहरे पे खुशी है वो एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके ऊपर सरकार में कई बार चर्चा हुई कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी इतना खर्चा क्यों करते हो, IIM भेजने की क्या ज़रूरत है, अभी हम आप लोगों को विदेश भी भेजेंगे। दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को हम लंदन भेजते हैं, उन लोगों को हम सिंगापुर भेजते हैं, उन लोगों को हम फिनलैंड भेजते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट माना जाता है। सो हम चाहते हैं कि आप लोग दुनिया का बेस्ट सिस्टम देख के आएँ और दिल्ली के सिस्टम को भी दुनिया का बेस्ट बनाना है। अपने को देश का बेस्ट, देश का तो बना ही लेंगे, वो तो हमें कॉन्फिडेंस है, दुनिया का बेस्ट बनाना है। तो ये चर्चा काफ़ी हुई हमारे यहाँ सरकार में कि इतना खर्चा करके इनको फिनलैंड भेजने की क्या ज़रूरत है, IIM भेजने की क्या ज़रूरत है, IIM के 2 प्रोफेसर्स को यहीं बुला लो, यहीं दे देंगे। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो था कि ये मैं देख रहा था 4 या 5 टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, 4 फैकल्टी थे शायद जिन्होंने आपको, अगर उन 4 को हम आपके MCD के स्कूल में भेज देते पढ़ाने को, कुछ नहीं होना था। ये चेहरे, एनवायरनमेंट, वो एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप बयां नहीं कर पा रहे, वो बयां आपके चेहरे की खुशी में ही नज़र आ रहा है। वो आप महसूस कर सकते हैं उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वहाँ पे आप रहे, जो भी होटल में रहे या अच्छा वो देखा, IIM देख के आए आप, IIM ऐसा होता है, वहाँ पे टीचर्स से मिले, कुछ स्टूडेंट से भी मिले, वो जो एक्सपोजर है वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में सबसे ज़्यादा। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और हमने कहा भाई नहीं, हम तो अपने उनको प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को वहीं पे भेजेंगे, वहीं पे उनको एक्सपीरियंस कराएंगे, चाहे 5 दिन के लिए कराएं, 7 दिन के लिए कराएं, लेकिन हम वहीं पे आप लोगों को कराएंगे। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। MCD के स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी ख़राब है और भी बहुत तरह की इस तरीके से ख़राब है। उन सर्कमस्टांसेस में काम करना कोई आसान काम नहीं है। अभी तक आप लोग बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। कभी किसी भी सरकार ने या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। कभी भी ये नहीं कहा गया कि एजुकेशन भी एक डिपार्टमेंट है, स्कूल भी चल रहे हैं, टीचरों की तनख्वाह जाती रहती है, प्रिंसिपल्स की तनख्वाह जाती रहती है। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, ये आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा। तो आप लोगों को IIMA भेजने का हमारा एक मकसद ये भी है, ये जताना कि एजुकेशन हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमने इंजीनियर्स को नहीं भेजा, हमने दूसरे हॉर्टिकल्चर वालों को नहीं भेजा, हमने टीचरों को भेजा है IIMA में सीखने के लिए। तो आप हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, एजुकेशन हमारी, बिकॉज हम बिलीव करते हैं हमारी पार्टी के अंदर कि जब तक देश में शिक्षा नहीं होगी सब बच्चों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर गरीब का बच्चा हमारे देश में पैदा हुआ वो भी तो भारत का नागरिक है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। गरीब बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या कसूर है? तो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये इस आइडियोलॉजी में हम लोग बिलीव करते हैं
और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिले। एक और चीज़ हुई है इससे कि एक पूरे सिस्टम के अंदर एक माहौल, अब एक धीरे धीरे आप वो करेंगे कि हम एक फैमिली बनते जाएंगे, हम सब लोग एक फैमिली बनते जाएंगे। अभी तक बिखरा हुआ था, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल अपना चल रहा, वो स्कूल। अब धीरे धीरे आप देखेंगे इस किस्म के ढेरों कार्यक्रम होंगे, ढेरों प्रोग्राम्स होंगे, और हम सारे मिलके एक फैमिली और एक टीम और एक मिशन की तरह काम करेंगे। अब ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। अभी मैं 2 दिन पहले उन बच्चों से बात कर रहा था, दिल्ली सरकार के कई स्कूलों के बच्चे IITs के अंदर गए हैं, नीट क्लियर किया है, लगभग 1391 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, 730 बच्चों ने IIT JEE के पेपर क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। एक एक बच्चे से जब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बच्चा खड़ा होकर कहता था मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। हर बच्चे ने कहा हम तो टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रहे। टीचर्स के अंदर जो जज्बा पैदा हो गया है, वो जज्बा धीरे 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 इतना इन्फेक्शस होता है। कई टीचर्स को मैं जानता हूं, गरीब बच्चा है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, कई टीचर्स अपनी जेब से उसको किताब दिला देते हैं। वो जो सेटिस्फैक्शन है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने का, मेरा बच्चा IIT में चला गया, मेरा इसको मैंने पढ़ाया था। आज तक मेरे को 10वीं क्लास के मेरे टीचर्स के नाम याद हैं, मेरी ज्योग्राफी की कौन सी टीचर थी, मेरी बायोलॉजी की कौन सी टीचर थी, मेरे को सारे याद हैं। तो वो बच्चे याद रखते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं, और टीचर को भी बच्चों से बहुत लगाव हो जाता है। ये सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिल रहा होगा, ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा होगा, वो कोई नहीं कर सकता। और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन हमारे दिल्ली सरकार के टीचर्स को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता DPS वालों को और मॉडर्न स्कूल वाले टीचर्स को भी वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। सो आप एक बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी आतिशी जी आप लोगों को विदेश भी भेजेंगी। थैंक यू सो मच। I would request the captain of the MCD ship, Mr. Vikas Tripathi, captain of the MCD ship, Mr. Vikas Tripathi, to present a vote of thanks. Honorable CM Sir, Honorable Education Minister Akshi Ma'am, Honorable Mayor Dr. Shaili Obera, Director SCRT, Deputy Director Anita Nodial, and my dear principals, हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि CM साहब ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हम सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। तो उसे पता चलता है कि जो एजुकेशन है उसको लेके कितने सीरियस हैं सर, और आक्षी मैम जो लगातार फीडबैक लेती रहती हैं, और इनफैक्ट हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की जो एजुकेशन के डायरेक्शन में जो लीडरशिप है, चाहे आक्षी मैम हो चाहे मेयर मैम हो, दोनों एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये अपने आप में ऐड कर देता है उन वैल्यूज को, क्योंकि ये लोग एजुकेशन को कोर से समझते हैं। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो हार्डवेयर की बात है, उसमें तो इम्प्रूवमेंट किया ही जाना चाहिए, पर वो इम्पॉर्टेंट तो है पर वो इसेंशियल नहीं है। पहली प्रायोरिटी हमेशा सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या पढ़ रहा है। उसके लिए आप लोगों के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे हमारे प्रिंसिपल्स हों, चाहे मेंटर टीचर्स हों, चाहे टीचर्स हों, उनका कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कैसे हो सकता है, उसके डायरेक्शन में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे जो सारे ऑफिसर्स हैं, पालमपुर मैम खुद भी गई थी और सारे ऑफिसर्स गए थे। देन मेंटर टीचर्स पालमपुर में आविष्कार में गए थे। अभी मेंटर टीचर्स का दूसरा ग्रुप कोयम्बटूर गया हुआ है। और जो प्रिंसिपल्स का हमारे ग्रुप, ये 50 प्रिंसिपल्स का अहमदाबाद गया है। मुझे लगता है ये जो पूरा डायरेक्शन है, पूरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। और हम लोग 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से जो नए इनिशिएटिव लेके आए, सर मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्पाइट ऑल कंस्ट्रेंट्स हमारे प्रिंसिपल्स सभी उन चेंजेस के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहे। हम लोगों ने जो भी लेसन प्लान इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने अलग अलग जो FLN में कुछ चेंजेस लेके आए थे कि हम जब तक बेसिक लेवल की एजुकेशन नहीं हो जाए तब तक रेगुलर क्लासेस नहीं चलाएंगे। और 5th क्लास के लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया था। प्रिंसिपल्स को 10-10 बच्चे ओन करने के लिए बोला गया था।
तो डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस सब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया था। और मुझे लगता है जब ये इनकी फैसिलिटेट जो किया जा रहा है ट्रेनिंग के थ्रू, और जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चीज़ें इंप्रूव करेंगी जो पाइपलाइन में है, चाहे वो सफाई कर्मचारी की बात हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की बात हो, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात हो, तो मुझे लगता है जो ये पॉजिटिव एनर्जी इनमें पहले से थी वो जो इन्हेंस हुई है, और साथ ही साथ जो हम कुछ इनिशिएटिव और जो ले रहे हैं जिसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे अभी आप 50 लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को 50 नहीं मानता, मैं आपको देखता हूं कि आप 25,000 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, और सर ने जो टाइम निकाला है वो 25,000 बच्चों के लिए निकाला है, और उनकी लाइफ में जो चेंज आएगा आपके थ्रू, मुझे लगता है उससे बड़ी अचीवमेंट हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकती। और आप जो आप लोगों को 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया था इनिशियली, उसके पीछे मकसद यही था कि आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करें, आप वो जो पॉजिटिविटी है वो एमसीडी के स्कूलों में, प्रिंसिपल्स में, बच्चों में, सभी में स्प्रेड करें, और ये जो ओवरऑल पूरा माहौल है वो पॉजिटिव हो, और जिन बच्चों की सेवा करने का हमको मौका मिला है वो हम उस ढंग से सर्व कर सकें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक ऊपर वाला ब्लेस नहीं करेगा तब तक कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेट एक सर्विस है जिससे आप उस बच्चे की नहीं, उस पूरी फैमिली और पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सीएम सर का कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ट्रांसफॉर्मेशन का, आक्षी मैम का, मेयर मैम का और डायरेक्टर सीआरटी का, कि वो लगातार इन्वॉल्व हैं हमारे इस कोर्सेज को डिजाइन करने में। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो पूरे इन्वॉल्वमेंट से आप लोगों ने 5 दिन में सीखा है, और पूरी डिटर्मिनेशन से आप इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर।